آج ہم لوگ کے درمیان ایک بہت ہی معروف شخصیت موجود ہے، سسٹر اسما شمس، جو کہ اسلامک ایجوکیشنل ریسرچ آرگنائزیشن کی ویمنز ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں۔ IERO کے اور انٹروڈکشن کے لیے اور سسٹر اسما شمس کے انٹروڈکشن کے لیے میں اب دعوت دیتی ہوں سسٹر شبنم رحمان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ میں شبنم رحمان IERO کی جانب سے ہوں اور مسز شمس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کے زیر نگرانی ٹریننگ حاصل کر رہی ہوں۔ میں آپ کے سامنے IERO کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل ریسرچ آرگنائزیشن، یہ تنظیم امن پسند نوجوانوں کی، یوتھس کی تنظیم ہے، جس کا مقصد توحید کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے ساتھ ساتھ نان مسلمز میں پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہماری آرگنائزیشن مختلف طریقے سے جدوجہد کر رہی ہے۔ اپنی مقاصد کے حصول کی خاطر آرگنائزیشن کی طرف سے ٹائم ٹو ٹائم چھوٹے بڑے پبلک لیکچرز، سیمینارز، سمپوزیا، ان ساری چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہماری آرگنائزیشن دوسرے شہروں میں بھی جا کر دعوت دین اور خدمت خلق کرتی رہتی ہے۔ اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے ایجوکیشنل بک فیئر میں بک اسٹال لگا کر نان مسلمز میں قرآن کا فری ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے۔ اور اب میں آپ سب کا اور وقت نہ لیتے ہوئے مسز شمس کا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ مسز شمس IERO کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ اور الحمدللہ تقویٰ اسلامک اسکول جو کہ شہر الہ آباد میں ہے، اس کی پرنسپل ہے۔ اب مسز شمس کی زندگی کا مقصد دین حق کو پھیلانا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دین کے فروغ میں لگا رہی ہیں۔ میں اور بہت سی ہر عمر کی خواتین ان کے زیر نگرانی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ مسز شمس اپنی مصروفیت میں زیادہ ہو جانے کے باوجود بھی اپنا کام بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ آپ ویکلی، منتھلی پروگرام آرگنائز کرتی ہیں، جس میں درس قرآن، درس حدیث وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں سحر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ پروگرام کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم
عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو کسی کو، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ سے اور قرابت داروں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے اور قرابت والے ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پاس بیٹھنے والے سے اور مسافر سے جو تمہارا غلام یا کنیز ہو، بے شک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے بڑھمارنے والے ہوں، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اس سے خرچ کرتے جو اللہ نے انہیں دیا، اور اللہ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گنا کر دیتا ہے اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت بہت شکریہ سہر۔ ہم لوگ کے دماغ میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کل کے دور میں ہم کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اسلام کو اور کریئر کو بیلنس کر کے چلیں، تو ہم لوگ کس کی لائف سے انسپریشن لیں جس سے کہ ہم لوگ کو دین بھی حاصل ہو اور دنیا بھی حاصل ہو۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہو شوڈ بی آ رول ماڈل۔ تو اس عنوان پہ روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر اسما شمس کو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی اس شام کی گفتگو کا موضوع ہے ہم خواتین کی رول ماڈل کون؟ ہم خواتین سے میری مراد مسلمہ ہیں۔ ہم مسلمہ، ہم مومنہ، مسلمات، مومنات خواتین، لیڈیز اور گرلز کی آئیڈیل کون ہے، رول ماڈل کون ہے؟ آئیڈیل یا رول ماڈل جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہوں جو ہم اپنا سکتے ہوں، اور اس کی ساری عادتیں، اس کی ساری ہیبٹس ہم اپنا کے اس کے جیسا بن جائیں۔ تو ہم اس دور میں بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں کہ ہم خواتین کے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے، اور اس کنفیوژن میں کئی لوگ اپنے رول ماڈل کئی لوگوں کو بنا بھی لیتے ہیں۔ آج اس بات کو انالائز کرنا ہے کہ وہ عورت، وہ خاتون کون ہو سکتی ہے جس کو ہمیں اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے۔ کیا وہ ایشوریہ رائے ہونا چاہیے، کیٹرینہ کیف، فرح خان، سروج خان، یا تو پھر کوئین ایلزابتھ، یا پھر کوئی اور؟ ہم خواتین کی رول ماڈل کون؟ رول ماڈل کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو گائیڈ کرتا ہے قرآن مجید میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
बेशक हमारे रसूल में, अल्लाह के रसूल में आपके लिए उम्दा नमूना मौजूद है। यानी रोल मॉडल जो शख्सियत हो सकती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अभी भी हम लेडीज गर्ल्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्द नबी थे और हम खवातीन, हम लेडीज गर्ल्स एक अच्छी बीवी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी माँ कैसे बने, इसका उसवा, इसका नमूना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं देख सकते। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बस इसी कोने की जगह बाकी रह जाती है, बस एक गोशा खाली रह जाता है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा दे कि हम एक अच्छी बेटी, बीवी, बहन किस तरह बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में भी हमको यूं ही नहीं छोड़ दिया है, बगैर गाइडेंस के, बगैर उसवा बनाए हमको इस तरह भटकता हुआ नहीं छोड़ दिया है कि बस अल्लाह ने पैदा कर दिया और उसके बाद हम भटकते रहें। बिल्कुल नहीं, उसका भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतजाम कर दिया है। और कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 में, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़वाज मुतहहरात उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करते हुए कहा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, यानी उनको खास कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात, उनकी बीवियों को खास कर दिया कि तुम आम नहीं हो कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो जैसे चाहो, बल्कि तुम खास हो और तुमको तमाम उम्मत मुस्लिमा की खवातीन के लिए आइडियल बनना है, उसवा बनना है। तो उनको बहुत मजबूत गिरफ्त हो गई उन पर, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ा दी गई। क्या जिम्मेदारी बढ़ा दी गई? अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 30 और 31 में कि अगर तुम में से कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी, रसूलुल्लाह के बीवियों के बारे में बात हो रही है कि उम्महातुल मोमिनीन में अगर तुम में से कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसको दोहरी सजा है और ये अल्लाह को आसान है। और अगर तुम नेक अमल करोगी, अल्लाह की और उसके रसूल की फरमाबरदारी करती रहोगी तो तुम्हें दूना अज्र है, दोहरा सवाब है और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इज्जत की रोजी मुहैया कर रखी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्महातुल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन की माएँ यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खास कर दिया और उनके लिए दोहरा सवाब नेकी के काम में रखा और गलत काम में दोहरी सजा। इससे हमें पता चलता है कि अज़वाज मुतहहरात में वो बात है जिसे हम देख सकते हैं और अपना उसवा बना सकते हैं, अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। ना सिर्फ अज़वाज मुतहहरात बल्कि बनाती मुतहहरात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, उनके अंदर भी हम देख सकते हैं, उनको भी अपना उसवा बना सकते हैं। और उसके अलावा कुरान मजीद में कई खवातीन का जो जिक्र है जिनकी अल्लाह ने तारीफ की है, उनको भी हमें देखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगियां कैसी थीं। बस थोड़ी सी मुताले की ज़रूरत है, जहां हम थोड़ी स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ये बात साफ हो जाएगी कि कौन हमारा आइडियल, हमारा रोल मॉडल बनने के लिए डिजर्व करता है और कौन नहीं। सबसे पहले अज़वाज मुतहहरात में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात करेंगे, क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थी, सबसे प्यारी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बहुत मोहब्बत थी। वो आपकी ऐसी गमगुसार बीवी थी कि हर दुख परेशानी के वक्त में हज़रत खदीजा ने साथ दिया। जब पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती है, जब आप गारे हिरा में थे, कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को मालूम होगा, गारे हिरा में आप इबादत कर रहे थे और एक फरिश्ता आता है जिब्रील अलैहिस्सलाम और कहता है इक़रा, पढ़ो, और कस के
भेजता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मां अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस तरह फरिश्ते 3 बार जोर से भेजते हैं और फाइनली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ देते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को अलक़ा से पैदा किया। ये आयत मौजूद है सूरह अलक़ सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1 और 2। जब वही आती है सूरह अलक़ की शुरुआती 5 आयत, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आपको पहले से कोई ऐलान तो था नहीं कि आप नबी बनाए जा रहे हैं। वो पहली बार आपको बताया जा रहा है कि आप रसूल हैं, नबी हैं और ये अल्लाह की तरफ से वही है। आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं, पसीने में बिल्कुल शराबोर घर लौट कर आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़ौरन कंबल उड़ा देती हैं, और जब आपके खौफ में कमी होती है और आप बिस्तर से बाहर निकलते हैं तो आप फरमाते हैं मुझे अपनी जान का डर है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा कि एक बीवी का क्या रोल होना चाहिए, जो कि हज़रत खदीजा ने रोल प्ले किया। ये हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ में, सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल वही बाब नंबर 1 हदीस नंबर 3। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अपनी जान का डर है। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा, आप नातवान का बोझ उठाते हैं, नाते जोड़ते हैं, जो लोगों के पास नहीं उसे कमा कर देते हैं, और आप परेशान हाल को ज़रूरियात को पूरा करते हैं, फसाद और मुसीबत के वक्त हक का साथ देते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये है वो गमगुसारी के तारीख़ी अल्फाज जो मौजूद हैं अहदीस में। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन, अभी तो आप सब अनमैरिड हैं ज़्यादातर जहाँ तक हम देख रहे हैं, ऐसी सिचुएशन और भी औरतों की ज़िंदगी में आती हैं, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में भी आएगी इंशाल्लाह। जब शौहर परेशान है तो बीवी का रोल क्या होना चाहिए कि वो कह दे तुम तो हर वक्त ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। क्या ये तरीका होना चाहिए एक बीवी का? हम कभी भी ये नहीं जानना चाहते कि हम कैसे अच्छी बेटी बने, कैसे अच्छी बीवी बने, बस हम अपनी पहचान अपनी को जमाने की कोशिश करते रहते हैं। हज़रत खदीजा ने एक बेहतरीन बीवी की मिसाल पेश की, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस कोऑपरेशन की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको बहुत मोहब्बत करते थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की बातों से परेशान होते तो हज़रत खदीजा के पास ही आते, और अल्लाह के रसूल फरमाते कि कोई गम ऐसा ना था जो खदीजा की गमगुसारी के बाद कम ना हो जाता। तो जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती है हज़रत खदीजा से शेयर करते, और वो इस तरह से अपना कोऑपरेशन देती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गम दूर हो जाते, और फरमाती या रसूलल्लाह, क्या ऐसा भी कोई रसूल आया है, नबी आया है जिससे लोगों ने मजाक ना उड़ाया हो जिसका? तो इस तरह से आपका गम हल्का हो जाता। जब इतनी कोऑपरेटिव हो बीवी, तो क्यों ना शौहर उससे मोहब्बत करे, क्यों ना मोहब्बत करे? आपको भी इंतहाई मोहब्बत थी अपनी बीवी से, जबकि आपसे 15 साल बड़ी थी, बावजूद उसके आप इंतहाई मोहब्बत करते थे। उनकी वफात के बाद भी आप उनको भूल नहीं गए थे। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत देर तक तारीफ जब कर ली तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को रश्क आया। ये हदीस मौजूद है मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 118। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं या रसूलल्लाह, कुरैश की औरतों में से एक औरत, एक बूढ़ियों में से एक बूढ़ी जिसके होंठ लाल थे और उसको मरे हुए ज़माना गुजर गया, आप उसकी इतनी देर से तारीफ किए जा रहे हैं, आपको तो अल्लाह ताला ने उनसे बेहतर बीवियां अता की हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है, और आप फरमाते हैं कि ऐ आयशा, खदीजा मेरी वो बीवी थी कि जब लोगों ने मेरा इनकार किया तब वो मुझ पर ईमान लाई, जब लोग मुझे झुठला रहे थे तब उन्होंने मेरी तस्दीक की, और उन्होंने अपनी माल से मेरी मदद की, जब लोग मुझे अपनी मदद से महरूम कर रहे थे
تو انہوں نے مال سے مجھے مدد دی اور ان سے اللہ نے مجھے اولاد دی. تو یہ ہے شوہر کی محبت جو کہ حاصل ہو سکتی ہے بیوی کے صحیح کوآپریشن سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کی مالدار خواتین میں سے تھی. بہت مالدار خاتون تھی اور وہ ایک بزنس لیڈی تھی, اپنا بزنس کرتی تھی اور بہت سارا مال تھا ان کے پاس. شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے, رسول اللہ سے نکاح سے پہلے وہ اپنے دیگر محرم سے بزنس کا کام لیتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا بزنس کا کام کرتی تھی. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا غمزدہ دیکھا تو جب سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی ضرورت سبب بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جائیے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کو بلا لائیے. سارے قریش کے خاص لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے, بہت بڑا سا ڈھیر کہ انسان چھپ جائے اس کے پیچھے, اتنا سارا مال. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے قریش کے لوگوں سن لو کہ یہ میں نے پورا اپنا مال اپنی رضا سے محمد کے نام کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ بیوی جو مالدار ہے اور اپنے مال کو پورا شوہر کے اوپر نچھاور کر دیا. ہمیں سے بھی کئی لوگ کماتے ہیں اور جو میرڈ ہوتے ہیں وہ کماتی ہیں, اور کس لیے کماتی ہیں کہ ایک تو اپنی لائف سیٹل ہوگی, اپنی من مرضی کریں گے, دوسرا شوہر پہ کافی کنٹرول رہے گا, شوہر کے اوپر روب دکھائیں گے کہ بہت بڑی بات تھوڑی ہے, تمہاری سیلری اتنی ہے تو ہماری بھی اتنی تو ہے, اس لیے کماتی ہیں. اور شوہر کو پیر کی جوتی سمجھ لیتی ہیں. تو کمائے تو اس لیے نہیں کہ شوہر کے کو کچھ سمجھے ہی نہیں, بلکہ حضرت خدیجہ کی مثال موجود ہے. انہوں نے کمایا لیکن اپنی ساری دولت کو اپنی خوشی سے اپنے شوہر کے اوپر نچھاور کر دیا. اور شیبہ ابی طالب میں جو تکالیف برداشت کی ہے وہ مالدار خاتون ان کی صبر کی مثال قائم کرتی. جب مال ہوتا ہے تو عیش و آرام سے انسان رہتا بھی ہے, عیش و آرام سے پلی بڑھی, اور اس کے بعد شیبہ ابی طالب میں جو بھوک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا, اس صبر کے ساتھ اس کو نبھایا ہے کہ واللہ اللہ نے تو ان کو پسند کر لیا. اور ان کو کیا دنیا میں ہی کتنی عظیم الشان چیز ملتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں, ان کو آپ میرا اور اللہ کا سلام پیش کر دیجئے. سبحان اللہ, ایک خاتون, ایک عورت, ایک لیڈی کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کو تمام ملائکہ کے سردار, فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام سلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے. ابھی دنیا میں ہی جنت میں کیا عیش و آرام ہوگا, کیا عزت ہوگی, اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے. یہ بھی تو ایک عورت تھی, یہ بھی تو ایک خاتون تھی, ان کے اندر بھی جذبات احساسات ہوں گے, ان کے اندر بھی نفس ہوگا, ان کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی, کماتی بھی تھی, کیوں غرور نہیں ہو گیا. تو ہم پہلے یہ طے کریں کہ ہم لائف میں کرنا کیا چاہتے ہیں, اور یہیں سے ہم گڑبڑ ہو جاتے ہیں جو ہم غلط لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور پھر انہیں کے طرز عمل پہ چل پڑتے ہیں, اور فائنلی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو عذاب ہے اس کا تو تصور ہی محال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہی خاتون تھی جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو تربیت دی, حضرت رقیہ حضرت زینب کو تربیت دی, حضرت ام کلثوم کو تربیت دی, اور انہی کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ جو خاتون جنت ہیں, سید النساء اہل جنہ, ترمذی کی حدیث میں ہے اور مشکات میں بھی درج ہے پیج نمبر 570 میں, کہ ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब सलाह पढ़ते हैं और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं एक फरिश्ता था जो कभी भी रात से पहले ज़मीन पर नहीं आया, उसने अपने रब से इजाज़त ली है आकर मुझको सलाम करने की और ये खुशखबरी सुनाने की कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, सैयदुन निसा अहले जन्ना है। सुभान अल्लाह। कुछ बहुत थोड़ी सी उम्र पाई थी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने, उनमें से उस उम्र को हम में से कई लोग पहुंच भी चुके हैं। उतनी उम्र में जन्नत को खरीद लिया, ना सिर्फ जाने का रिजर्वेशन करा लिया बल्कि जन्नती औरतों की सरदार हैं। क्या हम उनके उसवा को देखना चाहेंगे, उनके जैसा बनना चाहेंगे, उनके पास रहना चाहेंगे, या ये वेस्टर्न कल्चर में रंगी हुई बेहया बेशर्म खवातीन को देखकर जहन्नम की आग में जलना चाहेंगे? चॉइस हमारी क्या है? अगर हम चाहते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह जन्नत में पहुंचना, तो हमें देखना होगा कि उन्होंने क्या अखलाक और किरदार का मुजाहिरा किया है, कैसी बेटी थी वो, कैसी बीवी थी वो, कैसी माँ थी वो। बतौर बेटी बेहतरीन मिसाल पेश किया आपने। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने अपनी कमाई से उनको एक हार बनाकर दिया सोने का, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपको बहुत नागवार हुआ, फौरन हार उतारकर सदका कर दिया अपने अब्बा जान को खुश करने के लिए। यह हदीस मौजूद है सुनन नसाई में, हदीस नंबर 5143। फौरन सदका कर दिया। हम लोग बहुत बहानेबाजियां करते हैं, शौहर कोई तोहफे ला कर दे तो उसको ख्वाहिश तो हमारी है कि हम पहने, हमारे जेब तन रहे, हमारी उंगली में पड़ा रहे, हमारे गले में पड़ा रहे, लेकिन बहाने क्या बनाएंगे, अपने हस्बैंड ने दिया है ना, अगर किसी को दे देंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। ये सब बहानेबाजियां करते हैं। उन्होंने तो कोई बहानेबाजी नहीं की, शौहर की लाई हुई चीज फौरन सदका कर दिया। तो जब इंसान करना चाहता है तो काम आसान हो जाता है। बतौर बीवी इतनी फर्माबरदार थी वो कि जब भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह घर में तशरीफ लाते फौरन खड़ी हो जाती, सलाम करती, मरहबा कहती और मुस्कुरा कर उनका वेलकम करती। हमें से कितने लोग जो मैरिड हो, वो कितने लोग अपने शौहर को मुस्कुरा कर वेलकम करते हैं? दरवाजा खोलते ही सास की शिकायत, नंद की शिकायत, तमाम शिकायतों का पुलिंदा लेके शौहर से मुलाकात करते हैं कि तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारी अम्मा मानेगी नहीं क्या। बस अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अल्लाह ताला ने औरत को जिस लिए बनाया, जो फैमिली खुशहाल रखने के लिए, जो उसका असल मकसद है, वो भूल गई। और शौहर को कोऑपरेट करना, उसके सामने मुस्कुरा कर बात करना, उसके गम को हल्का करना, उसको करने के बजाय वो शिकायत पुलिंदा लेकर उससे मुलाकात करती है। ऐसी बीवी होना अच्छी बात है? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत साबिरा खातून थी। हजरत अली करमुल्लाह वजह फुकराए साहबा में से थे। बुनियादी जरूरियात की चीजें नहीं थी उनके पास, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उसी में आराम से एडजस्ट किया और बगैर किसी शिकवे शिकायत के सारा काम घर में खुद करती। हाथ में छाले पड़ जाते उनके, बच्चों की परवरिश, गोद में लेना, तब भी जुबान जिक्र इलाही से तर रहती थी। एक मर्तबा हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा बीमार हो गए तो हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नजर मानी 3 रोजे रखने की। जब वो लोग अच्छे हो गए तो दोनों ने रोजे स्टार्ट किए, जबकि खाने को कुछ भी नहीं था। फाके की हालत में रोजा शुरू हो गया। उसके बाद रोजे की हालत में हज़रत अली करमुल्लाह वजह पड़ोस से, जो कि यहूदी था जिसका नाम शमऊन था, उससे उजरत पर एक ऊन का गट्ठा ले आए कि मोहम्मद की बेटी इसको काट देगी, धागा बना देगी, और 300 जो तय हुआ उजरत, और उसको लेकर आए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोजे की हालत में उसका 1/3 एक दिन में ऊन काटा और उससे 100 जौ मिला।
जो लाया गया घर में, और उसके बाद उसको पीसा, सान के रोटियां बनाई, 5 रोटियां बनाई, एक अपने लिए, एक अपने शौहर के लिए, 2 अपने बच्चों के लिए और एक खादिमा के लिए। 5 रोटियां बनाई और इफ्तार के वक्त लेकर बैठे। जैसे ही इफ्तार होने वाला था, उससे पहले बाहर किसी मिस्कीन ने आवाज लगा दी। हज़रत अली ने इजाजत मांगी, हज़रत फातिमा ने कहा दे दीजिए। सारी रोटियां दे दी गई सवाली को, और बगैर इफ्तार के अगले दिन का रोजा शुरू हो गया। दूसरा दिन हो जाता है, फिर 1/3 ऊन काटती है, और फिर 1 सौ जो आता है, और फिर 5 रोटियां बनती हैं, और फिर इफ्तार का वक्त आता है। इफ्तार के लिए बैठते हैं, बाहर किसी यतीम ने सदा लगा दी। वो रोटियां फिर यतीम को दे दी जाती हैं, और भूख की हालत में इसी तरह तीसरे दिन का रोजा शुरू हो जाता है। तीसरे दिन जब रोजा खोलने चलते हैं उसी तरह, तो फिर एक कैदी मांग लेता है, और फिर वो रोटियां कैदी को दे दी जाती हैं, और 3 दिन हो जाता है, इफ्तार नहीं होता। अगला दिन रोजा तो नहीं रहता, लेकिन फाका रहता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, पेट कमर से लगा जा रहा है। हज़रत फातिमा का भी यही हाल है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह अपने दोनों बच्चों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, चलो फातिमा के पास चलते हैं। जब आते हैं दोनों, तो देखते हैं हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा भूख से बदहाल सलाह पढ़ रही हैं, नमाज पर खड़ी नजर आती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दुआ खैर करते हैं, और फिर वही आ जाती है आप पर, और वो वही की आयत रिकॉर्डेड है सूरह अद-दहर में, सूरह नंबर 76 आयत नंबर 8। अल्लाह ताला ने फरमाया वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, जो बावजूद कि उनको खाने की जरूरत है, खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। जब सब्र इस दर्जे का हो, तो क्यों ना अल्लाह कुरान में याद करे, कुरान में तारीफ करे, कुरान में जिक्र करे। हम मानते हैं कि आज हम कोई भी अमल कर गुजरे, लेकिन कोई वही नहीं आने वाली, हमारा नाम कुरान में दर्ज नहीं होने वाला, लेकिन अल्लाह आज भी अस-समीअ है, अल-बसीर है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। चाहे कोई वही ना आए, मगर अल्लाह ताला देख रहा है, वो मलाइका की जमात में हमारा नाम लेगा, हमारी तारीफ करेगा। इंसानों की जमात से बहुत आला फरिश्तों की जमात में नाम लिया जाएगा। तो हमको इन खवातीन को उसवा बनाना चाहिए कि बेहया, बेढंगी, दुनिया परस्त, मटेरियलिस्टिक लेडीज को, कि जो दुनिया की कमाने में और दुनिया के नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्होंने अपनी कोई हदें ही मुकर्रर नहीं कर रखी हैं। हज़रत फातिमा के पर्दे का वो हाल था कि न सिर्फ अपनी हयात में, बल्कि अपने मरने के बाद तक का इंतजाम किया उन्होंने। सारी सेटिंग करके वफात हुई है उनकी, कि किस तरह से उनके जनाजे को कफनाया जाएगा, गौसले दिया जाएगा। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से फरमाती हैं कि देखो, तदफीन में बहुत हुजूम मत होने देना, तुम रहना और मेरे शौहर और कोई रहने ना पाए, और किसी को अंदर मत आने देना। तो इस तरह से पर्दे का एहतमाम उन्होंने अपनी बॉडी, डेड बॉडी के लिए भी करके गई। और हम हैं 16 आने, जीते जागते, पूरे अट्रैक्शन से भरे हुए, पर हमको हिजाब का कोई ख्याल ही नहीं रहता। ये हिजाब कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, ये फ़र्ज़ है, हम पर फ़र्ज़ है हमारे रब की तरफ से। हम तो सोचते हैं कि जब तक हमारा फिगर नहीं दिखेगा, तब तक हम स्मार्ट नहीं लगेंगे, तो हमारा पूरा गेटअप ही चेंज हो गया है। वेस्टर्न कल्चर पे हम बिल्कुल कॉपी करने लगे उसको। ये हमको कहाँ लेकर जाएगा?
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزیز بیوی تھی اور آپ ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے، وہ اس قدر عالمہ خاتون تھی کہ آج کے دور میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے، ناممکن ہے بلکہ۔ حضرت عائشہ وہ خاتون ہیں جب وہ صرف 18 سال کی تھی تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، 18 سال کی تھی، اور پورے 48 سال انہوں نے 48 ایئر عالم بیوگی میں گزارے، بیوہ کی طرح۔ لیکن ان تمام عرصے میں انسانوں کے لیے، مسلم امہ کے لیے رشد و ہدایت کا اور علم و عقل و فن کا ایک عظیم سرچشمہ بن گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جید صحابہ کرام، ان سے مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے، ان سے اپنی پرابلم سالو کرانے کے لیے آتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا جس کا سلیوشن، جس کا جواب حضرت عائشہ کے پاس نہ ہو، یعنی ہر موضوع پر حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ان کا نمونہ معلوم تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں، 2210 احادیث کی نریٹر ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عروہ بن زبیر جو کہ آپ کے شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹ بھی اور بھانجے بھی، وہ کہتے ہیں میں نے علم میں، قرآن و سنت کے فقہ میں اور شعر و ادب میں اور تاریخ میں، حساب کے علم میں، میتھمیٹکس میں حضرت عائشہ کے جیسا انسان نہیں دیکھا۔ کئی صحابہ کرام، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جیسا فصیح اللسان نہیں دیکھا، زبان کی اتنا رچ تھی، بہترین خطیب، بہت عمدہ خطبہ دینے والی۔ یہ تمام صحابہ کرام کو گائیڈ کر رہی ہیں، 88 علماء کو انہوں نے تعلیم دی، she was a scholar of scholars، 88 علماء کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں اپنی خالہ سے کہ میں آپ پر جتنا غور کرتا ہوں مجھے اتنا ہی تعجب ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب کہ آپ کو دین کا فہم سب سے زیادہ ہے تو میں سوچتا ہوں کیا بات ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں آپ کو عرب کی ہسٹری اور شعر و ادب میں مہارت ہے، تاریخ میں مہارت ہے، تو سوچتا ہوں کیا بات ہے، آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ لیکن مجھے تعجب تو جب ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں آپ کو طب میں بھی مہارت ہے، میڈیسن میں، وہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، پیار سے ان کا نام بدل کر، اے عریہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی، بیماری زیادہ بڑھ گئی تو عرب اور عجم سے ان کے لیے دوائیاں آنے لگی اور میں نے علم طب سیکھ لیا۔ صرف میڈیسن بنا کر دینے سے ان کو میڈیسن میں مہارت ہو گئی تھی، نہایت ذہین خاتون تھی، زبردست انٹیلیجنٹ۔ ان کو کس فیلڈ میں مہارت تھی؟ ان کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ کئی صحابہ کرام سے انہوں نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، وہ جب ان کی وفات کے وقت انہوں نے نئے کپڑے منگا کر پہنے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ انسان جن کپڑوں میں مرتا ہے اسی میں اٹھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ ابو سعید پر اللہ رحم کرے، رسول اللہ کی مراد لباس سے عمل تھی، اعمال تھی۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایات میں آتا ہے کہ اہل خانہ کے رونے سے مردے پر عذاب ہوتا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے یہ بات سنی، نکار دیا، ریجیکٹ، بولی کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک یہودیہ کا جنازہ جا رہا تھا اور اس کے اہل خانہ، اس کے گھر والے رو رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے،
यानी दोनों का आपस में रिलेशन नहीं है, और फौरन कुरान पेश किया, फरमाया कुरान में इसके खिलाफ सबूत मौजूद है। और वो आयत है सूरह ज़ुमर, सूरह नंबर 39, आयत नंबर 7, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो अपनी ज़हानत की बुनियाद पर उन्होंने बड़े बड़े सहाबा किराम से इख्तिलाफ किया है। अब हमें देखना ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वो भी ज़हीन थी, उनको भी इल्म था, मामूली नहीं, मेडिसिन का इल्म था, मैथमेटिक्स का इल्म था। जब भी कोई तरके के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैलकुलेशन कराने के लिए परेशान होता तो हज़रत आयशा के पास आता, वो फौरन डिस्ट्रीब्यूट करके और हिस्सा बता देती किसको कितना मिलेगा। मैथमेटिक्स में भी माहिर थी, मैथमेटिक्स में माहिर, शेर व अदब में माहिर, हिस्ट्री में माहिर, मेडिसिन में माहिर। बावजूद उसके हिजाब की ये हालत थी कि जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हुजरे में दफन हो गए तो उन्होंने हुजरा छोड़ दिया। मुद्दे से हिजाब नहीं है, बावजूद उसके उन्होंने हुजरा छोड़ दिया। इंतहाई हिजाब में रहने वाली खातून, सारी चीज एक साथ एक पैकेट में, एक शख्सियत, एक औरत में बहुत सारी चीज। हमें क्या जरूरत पड़ गई किसी और को देखने की? हमें क्या जरूरत है किसी गैर कौम की तकलीद करने की, उनकी कॉपी करने की? हजरत आयशा को मेडिसिन का इल्म था। आप में से भी कई मेडिकल की स्टूडेंट्स बैठे हैं, जहाँ तक हम जानते हैं। वो भी तो एमबीबीएस एमडी थी, चाहे इस डिग्री के नाम से उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन उनको इल्म था मेडिसिन का। वो भी तो एमडी खातून थी, लेकिन हिजाब की पाबंदी, कुरान और सुन्नत का इल्म, सब कुछ एक साथ। हमने सिर्फ एक चीज को क्यों ले लिया कि हाँ इल्म हासिल करना है, लेकिन कुरान और सुन्नत का इल्म भी नहीं हासिल करना है और हुदूद शरीयत में नहीं रहना है। क्या हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं है जिनको हम उसवा बना सके? हजरत आयशा की मिसाल नहीं है जिनको हम उसवा बना सके? हमारा इल्म हमको क्या सिखाता है कि अगर हम आला तालीम हासिल करेंगे तब तो ऐसे हो जाएंगे कि कोई पहचान ही ना सके कि लड़की है कि लड़का है। यही तसव्वुरात है हमारे इल्म के और तरक्की के कि जब तक हम वेस्टर्न कल्चर के रंग में नहीं रहेंगे तब तक हमको तरक्की याफ्ता नहीं माना जाएगा। जबकि अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसे इल्म को अरबाब नजर मौत। मतलब ये कि जिस इल्म को हासिल करके औरत मर्द जैसी बन जाए, बॉब कट हेयर, टाइट फिटिंग के जीन्स वगैरह, औरत मर्द जैसी दिखने लगे, वो कोई तरक्की का सिंबल नहीं है। वो क्या है? वो मौत और हलाकत का सिंबल है। तो हम क्यों उस इल्म की तरफ बढ़ रहे हैं? और कोई इल्म ये नहीं कहता कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं और हम वेस्टर्न कल्चर की तकलीद करना शुरू कर दें। कोई इल्म ये नहीं सिखाता। इल्म आप बाहिजाब रह के भी ले सकती हैं, हुदूद शरीयत में रह के भी हासिल कर सकती हैं। माशाल्लाह अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है। और कई चीज़ें यहाँ पर माहौल और जगह से तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब इतना कुछ अल्लाह ताला ने दिया है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए और वैसा बनने की कोशिश करना चाहिए जैसा अल्लाह हमको पसंद करे। हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए कि हम अल्लाह की नज़र में बन जाएं कि दुनिया में एक मॉडल बन के खड़े हो जाएं। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारा माजी कैसा था, हमारा पास्ट कैसा था। हमारे पास में बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। इस्लाम में हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। तो ना सिर्फ दीन मुकम्मल है बल्कि हमारे लिए पैटर्न ऑफ कंडक्ट जो कोई है वो भी मुकम्मल है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरीन बेटी, बेहतरीन बहन और बेहतरीन बीवी और माँ बनने के लिए देख सकते हैं। अपने ही कल्चर में, अपने इस्लाम में बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। हजरत आयशा जहाँ एक तरफ इतनी ज़हीन थी, इतनी बाइल्म खातून थी, वहीं दूसरी तरफ निहायत साबिरा, इंतहाई सब्र करने वाली। वाक़या इफ्क अगर आप लोगों को पता हो, वाक़या इफ्क यानी जब हजरत आयशा पे बुहतान लगाया गया था, ग़ज़वा मुस्तलक़ से वापसी में हार गुम हो गया था, उसको ढूंढने में वो मिस हो गई काफिले से, काफिला आगे निकल गया और पीछे अकेले रह गई। फिर हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेकर काफिले से जा मिलते हैं। ये पूरी हदीस मौजूद है सही बुखारी में। सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताबुत तफसीर बाब नंबर 774 हदीस नंबर 1859। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब सफ़वान बिन मुअत्तल ने आए तो उनकी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आवाज़ सुनकर उनकी आँख खुली और फौरन उन्होंने ऊँट पेश कर दिया, उस पर सवार हुई और जाके काफिले से मिल गई। दोपहर का वक्त था और मुनाफिकीन ने वावेला करना शुरू कर दिया कि नबी की बीवी एक रात गुजार कर आई है, और इस तरह की बहुत सारी बातें बनाई गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उस वक्त तो नहीं पता चला, मदीना पहुंचकर बीमार हो गई, अपनी वालिदा के घर चली गई। 1 महीने का वक्त गुजर गया। फिर एक बार रफ़ाए हजत के लिए उम्मे मिस्ताह के साथ जाती हैं और उम्मे मिस्ताह उनको बता देती हैं कि तुम्हारे पीछे ये बातें चल रही हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इतना सदमा होता है, इतनी तकलीफ होती है, फरमाती हैं 2 रात और 1 दिन मेरे आंसू रुके नहीं, बहुत रोती हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और कहते हैं, ऐ आयशा, अगर तुमने गुनाह किया हो तो अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ करने वाला मेहरबान है, और अगर नहीं किया तो अनकरीब अल्लाह तुम्हारी बरात नाजिल कर देगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कोई जवाब नहीं रहता। अपने वालिद से चाहती हैं कोई जवाब दे, वो भी रुक जाते हैं। अपनी वालिदा उम्मे रुमान से चाहती हैं वो कोई जवाब दे, वो कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही बताओ। फिर हज़रत आयशा जवाब देती हैं, अगर मैं ये कहूँ मैंने किया है तो आप लोग मान लेंगे, जो कि मैंने किया नहीं, और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने नहीं किया है तो आप लोग आसानी से नहीं मानेंगे। और फिर कहती है, मैं उस नबी का नाम भूल गई थी, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को। अब उस नबी का कौल ही दुरुस्त है, जो कि दर्ज है कुरान मजीद में, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 18, फसब्रुन जमील, अब सब्र करना ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ताला जो बात तुम गढ़ लाए हो, अल्लाह ताला ही उसके लिए साथी है। वो ये कहकर सब्र कर लेती हैं और उसी हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आ जाती है। सब लोग हुजरे से बाहर हो जाते हैं। जब वही के आसार जाते रहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, तबस्सुम करते हैं और फरमाते हैं, आयशा, अल्लाह ने तुम्हारी बरात नाजिल कर दी। और वो आयत हैं सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक। 10 आयत एक खातून की पाक दामनी को साबित करने के लिए, कुरान की 10 आयत। और वो आयत की स्टार्टिंग है कि ये जो बोतान गढ़ लाए हैं ये तुम्हारे अपने ही गिरोह के लोग हैं, तुम इसको अपने हक में बुरा ना जानो, बल्कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। इस तरह आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक आयत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे ये तो लगता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखा दिया जाएगा मेरी पाक दामनी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे लिए वही आएगी और कुरान में मेरे बारे में जिक्र होगा जो कि क़यामत तक पढ़ा जाएगा। सुभान अल्लाह, ये है खुशनसीबी। जब ये अमल हो तो क्यों ना अल्लाह कुरान में तारीफ करे, क्यों ना अल्लाह पसंद कर ले। ये थी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सदक़ात में इंतहाई माहिर। कोई चीज़ जमा करके रखना उनकी आदत नहीं थी, कितना भी हदिया आता फौरन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती।
हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने एक बार 1 लाख दरहम भेजा उनको और उसी दिन के दिन पूरा 1 लाख दरहम बांट डाला। हमको कोई हदिया मिलता है, हमारे पास अगर दौलत आती है तो हम फौरन अपनी ही चीज़ों को बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। जिसको जिस चीज़ का क्रेज होता है वो निकल जाता है शॉपिंग एंड शॉपिंग मॉल्स की शक्ल में। बस हम अपने सारे पैसे को वहीं पर ज़ाया करके चल जाते हैं और नहीं सोचते कि हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही हैं, उनकी बेसिक नीड्स के लिए उनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो भूखे हैं, उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है। हमको उससे मतलब नहीं होता, हमको तो बस अपनी लाइफ में मस्त रहना है। तो जब हम इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं तो कैसे अल्लाह ताला हमको पसंद करेगा और कैसे अपने इनामात और अकरामात हमको देगा। जब हम गैर कौमों की तकलीद करेंगे, उनकी कॉपी करेंगे, उनकी होड़ में निकल जाएंगे तो हम क्या सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे। हम क्यों नहीं बनाते अपना उसवा, अपना नमूना, अपना रोल मॉडल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को, जो हर फील्ड में माहिर थी, हर चीज में माहिर। और हज़रत मरियम ये वो खातून है जिनका जिक्र कुरान मजीद में नाम से है। कुरान मजीद में वाहिद खातून का नाम है जो है ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम। हज़रत मरियम के सब्र के बारे में आपने कभी तसव्वुर किया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन पर सब्र की आजमाइशों के पहाड़ नाजिल कर दिए और उन्होंने उसको सह लिया, उठा लिया और अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया था एक बहुत बड़ा काम लेने के लिए। फरमाया सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 में, वक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहिरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरिश्ते ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें खास बना दिया है और तुम्हें पाक किया है और तमाम जहां की औरतों पर तुम्हें खास बनाकर सेलेक्ट कर लिया है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को सेलेक्ट किया, चुन लिया, एक अपनी बहुत बड़ी कुदरत का नमूना दिखाने के लिए। और हुक्म हुआ, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 45 में लिखा हुआ है कि वक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु। फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक खुशखबरी दी अपनी तरफ से एक कलमे की। इस्मुहु मसीह इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्न मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा इब्न मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया, और दुनिया में वो बावकार लोगों में होगा। वमिनल आखिरति हुमुल मुक़र्रबीन, वमिनल आखिरति हुमुल मुक़र्रबीन, और आखिरत में खास लोगों में होगा, मुक़र्रब लोगों में होगा। अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया, फरिश्ते के जरिए उनको बता दिया कि तुमको एक बेटा होगा और बगैर शौहर के होगा। हज़रत मरियम का जवाब था, दर्ज है कुरान मजीद में सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 47 में कि हज़रत मरियम ने कहा कि ए रब, मुझे क्यों कर होगा बेटा, मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। तो जवाब आया कि इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है और वो जिस चीज़ को पैदा करने का इरादा कर लेता है बस कहता है कुन, हो जा, फयकून, और वो हो जाता है। अल्लाह ताला ने कह दिया कि बस अल्लाह ताला जो पैदा करना चाहता है वो करेगा और तुमको उसका जरिया बनाएगा। अब सोचिए कि आजमाइश का पहाड़ टूट पड़ा है, एक औरत को कहा जा रहा है कि बगैर शौहर के बच्चा पैदा होगा, तो जाहिर है समाज से कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी होगी। अल्लाह का चुनाव है, लबैक कह दिया। और फिर जब हमल जाहिर होने लगा तो बहुत सहना पड़ा। ना सिर्फ तब बल्कि अब तक यहूद आपके पाक दामनी पर बोहतान लगाते हैं।
اور جب لیبر پین شروع ہو گیا, جب ڈیلیوری کا وقت آیا, نکل گئی بستی سے, جنگل میں چلی گئی. جنگل کی تنہائی ہے, بھوک ہے, پیاس ہے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے ان کا خیال رکھنے کی. لکھا ہوا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک کہ فرشتے نے نیچے کی طرف سے آواز لگائی, اللہ تحزنی, غم نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. کھجور کے درخت کو ہلاؤ, تم پر پکی کھجوریں گریں گی. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا, بس کھاؤ اور پیو, اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو. اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا جنگل میں انتظام کر دیا. بتائیے, جب عورت ایسی ہو, اتنی فرما بردار اپنے رب کی, تو کیا بڑی بات ہے کہ اس طرح کے کارنامے ہو, جنت میں جنگل میں چشمے جاری ہو جائیں اور کھجور اپنے پاس چلی آئے, کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو القادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو اس طرح سے جس طرح وہ فرما بردار تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ اتنا ہی خیال رکھا اور تمام معاشرے سے لڑی. وہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کیا گین تھا؟ کامن سینس کا سوال ہے کہ کیا گین کیا تھا؟ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے. رب کا چناؤ ہے, کوئی بات نہیں ہے, نبھا دیا. ایسی بابرکت خاتون تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں, نبی ہیں, وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے. حضرت زکریا جب بھی حجرے میں آتے, جو کہ لکھا ہوا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 میں, کہ زکریا جب بھی عبادت گاہ میں آتے تو وہاں کھانا پاتے. اور کون سا کھانا؟ دوسرے موسم کے پھل اور عجیب عجیب قیمتی چیزیں. تو انہوں نے سوال کیا, اے مریم, تمہارے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ حضرت مریم نے جواب دیا, یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے. وہ بالکل عقیدت سے بھر گئے حضرت علیہ السلام, اور ان کی ایک خواہش تھی کہ ان کی اولاد ہو. بس وہ دعا ان کی وہاں پر نکل پڑی. وہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کی بیوی بانجھ تھی, اور وہاں پر بابرکت مقام پر حضرت مریم کی حجرے میں, ان کی عبادت گاہ میں, انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ کو پکارا. وہ دعا درج ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38. فرمایا, رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے میرے رب, مجھے عطا کر ایک ستھرا پاک لڑکا, بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوراً اس دعا کو سن لیا, اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں, اور بیوی بانجھ ہے, اس حالت میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا. یہ ایک عورت کی برکت تھی, یہ ایک عورت کی برکت تھی. میریکلز ہو رہے ہیں, سبحان اللہ. تو ہم ان خواتین کو دیکھیں گے, ان کو اپنا نمونہ بنائیں گے, ان کا طرز عمل اختیار کریں گے, ان کا صبر اختیار کریں گے, کہ کسی اور طرف جائیں گے. ہم کیوں نہیں دیکھتے قرآن مجید میں کہ ان کو اللہ نے پسند کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ کون خواتین بہت بابرکت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح پسند کر لیا؟ یہ تھی حضرت مریم. اور حضرت آسیہ, حضرت آسیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ کون تھی؟ ماشاءاللہ, آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم ہے. فرعون کی بیوی تھی, اور ان کا شوہر بہت ہی ظالم, بہت سرکش, پرلے درجے کا کافر تھا فرعون. اس کافر کے گھر میں رہ کے وہ اللہ پر ایمان لائی اور اس کی ساری دولت کو ٹھکرا دیا. آسیہ وہ خاتون تھی جس کا شوہر بہت سرکش, بہت ظالم, باوجود اس کے وہ اللہ پر ایمان لائی, اور اس کی دولت
ठुकरा दिया, उसकी दौलत से मरगूब नहीं हुई, अपने रब को पहचाना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ की और उनको बतौर मिसाल पेश किया। फरमाया सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11 में कि मोमिनीन के लिए एक मिसाल है फिरौन की बीवी में। उसने अल्लाह से दुआ की, रब इब्ने ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना, वनज्जनी मिन फिरौन व अमली, और मुझे फिरौन और उसके अमल से नजात दे, वनज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, और मुझे इस जालिम कौम से नजात दे। अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पर जिक्र किया कि देखो फिरौन की बीवी में तुम्हारे लिए एक मिसाल है। वो कितने सरकश नाफरमान के घर में थी, बावजूद उसके उसने अपने रब को पहचाना और फिरौन के महल और उसकी दौलत में खो जाने के बजाय ऐशो आराम इतना होने के बाद उसने उसको प्रेफर नहीं किया, अपने रब से क्या दुआ की कि जन्नत में मेरे लिए एक घर बना और मुझे इससे नजात दे। यानी फिरौन और उसकी दौलत छोड़कर जाहिर है कि वो तकालीफ उठाती, लेकिन वो उनको कबूल था। इसमें गौर करने का बहुत नुक्ता है। वो क्या है कि हम में से कई खवातीन अपने बहुत सारे गुनाहों का इल्जाम अपने शौहर के ऊपर डाल देती हैं। मेरा शौहर बड़ा जालिम है, मेरा शौहर नेक अमल नहीं करने देता, हिजाब करने से रोकता है, ये डिमांड करता है, गलत सलत डिमांड करता है और मुझे नेक अमल नहीं करने देता। आपको क्या है? आपके शौहर तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, माशाल्लाह मेरे शौहर बहुत कोऑपरेटिव है। तो आपको क्या है? मेरे जैसा मिलता तो पता चलता। ये क्या है? ख्वाहिश नफ्स को खुद पूरा करना है। खुद चाहती हैं कि हम ये सब काम करें, हम हिजाब ना करें। खुद चाहती हैं कि हम आज़ाद रहें तमाम कायदोबंद से, इस्लामी कानून में खुद नहीं रहना चाहते। नाम लगाती है शौहर का, मेरे शौहर बहुत जालिम है। हमारी तरह रहो तो जानो कितना कुड़ के रहते हैं, कितना ज़्यादा परेशान रहते हैं। ऐसी हालत में किसको अल्लाह की याद आएगी? जब इंसान ये उज़्र रोज़े क़यामत पेश करेगा तो क्या अल्लाह ताला फिरौन की मिसाल, उसकी बीवी की मिसाल नहीं याद दिलाएगा? अल्लाह ताला कहेगा कि क्या तुम्हारा शौहर फिरौन से ज्यादा सरकश था, उससे ज्यादा जालिम था? यानी हजरत आसिया के लिए ये पॉसिबल हुआ कि इस जालिम के घर में रह के उनको अल्लाह की फरमाबरदारी करने का मौका मिलता था और वो ईमान लाई और अल्लाह की फरमाबरदार होकर रही। अब फिरौन से बढ़कर किसका शौहर जालिम होगा? जाहिर है उतना जालिम कोई नहीं होगा, हम में से किसी का भी, अल्लाह ना करे। लेकिन बहानेबाजियां हमें छोड़ देना चाहिए। अल्लाह ताला ने बतौर मिसाल पेश किया इन खवातीन को। उसके अलावा कुरान मजीद में जिक्र है एक खातून का जिसको जो हमारे लिए इबरत का जरिया बन सकती है। हजरत खौला बिन्त सालिबा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके शौहर ने उनसे ज़हार कर लिया था। ज़हार करना किसको कहते हैं? जब कोई शौहर अपनी बीवी को माँ जैसा कह दे तो उसको ज़हार कहते हैं। और दौरे जहालत में ज़हार सबसे बड़ा वाला डिवोर्स होता था, तलाक की सबसे ज़्यादा सख्त किस्म होती थी। यानी कोई अपनी बीवी को माँ या माँ जैसा कह दे तो मानते थे तलाक हो गया और सबसे सख्त वाला तलाक हो गया। हजरत खौला बिन्त सालिबा, उनके शौहर ने माँ जैसा कह दिया। अब छोटे छोटे बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते बिलखते पहुँचती हैं, या रसूलुल्लाह ऐसा ऐसा केस हो गया है, कोई हुक्म सादिर फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं। एक रिवायत में आता है कि गालिबन वो तो पर हराम हो गई। बहरहाल वो रोती रहती है, नहीं या रसूलल्लाह मुझे
कुछ हुक्म दे दीजिए, मेरे बच्चे हैं और मैं अलग नहीं होना चाहती अपने शौहर से। बस रोती रहती हैं और शिकायत करती रहती हैं, डिमांड करती रहती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस मुबाहिसा करती रहती हैं, जिदाल करती रहती हैं, यहाँ तक कि उनके रब ने अर्श मुअल्ला से उनकी सुन ली और वही आ जाती है जो कि लिखी हुई है सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 1। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली उस औरत की जो अपने शौहर के बारे में आपसे बहस कर रही थी, जिदाल कर रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह से शिकवा शिकायत कर रही थी और अल्लाह ताला ने उसकी सुन ली और आपसे बहस कर रही थी और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया और उसके बाद ज़हार की हुक्म नाजिल हो जाता है कि अब ज़हार से औरत हराम नहीं होती बल्कि सिर्फ कफ़ारा लाजिम हो जाता है। बस वो जैसे ही उनको पता चलता है बिल्कुल खुश खुश अपने घर लौटती हैं। गौर करने की बात यह है कि जिद में बैठ गई, या अल्लाह ताला मेरे लिए कोई हुक्म नाजिल कर दीजिए। बस अल्लाह को पुकारने लगी और अल्लाह ताला ने अर्श मुअल्ला से सुनकर जवाब भेजा। जिसको अल्लाह पे भरोसा होता है अल्लाह ताला किसी तरह उसके लिए कोई रास्ता निकाल देता है। जरूरत है अल्लाह पे भरोसा करने की। हमको भरोसा तो रहता नहीं अल्लाह पर, हम पहले ही सारी चीजें तय कर लेते हैं कि हमसे कहाँ हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है वगैरह वगैरह। तो जरूरत है अल्लाह पे भरोसा करने की, अल्लाह ताला जरूर कोई रास्ता निकालेगा। सारी मिसालें तो मौजूद हैं हमारे लिए अमल में लाने के लिए, हमको अल्लाह की नजर में बनने के लिए। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम अल्लाह की नजर में बनने का कोई शौक नहीं रखती, बल्कि हम दुनिया में एक स्टेटस पाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। कि इस अंधी दौड़ में हम लगे हुए हैं। इस्लाम में मिसाल हर तरह की है, हर तरह की बहादुरी की मिसाल से भरे पड़े हैं खवातीन के किरदार। हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर वो निहायत बोल्ड खातून थी, बहुत बहादुर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत हुई तो उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ज़ातुन निताक़ैन का लक़ब अता फरमाया। बहुत इंटेलिजेंट थी और अबू जहल का थप्पड़ खाया। रसूलुल्लाह के बारे में पूछ रहा था हिजरत के वक्त, और बहुत अपने शोहर के साथ सब्र शुक्र के साथ रहती थी और बहुत फरमाबरदारी करती थी शोहर की। इतनी बहादुर होने के बाद शोहर की फरमाबरदारी में कमी नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट, बावजूद उसके शोहर के साथ उनका क्या रिश्ता था। एक बेचने वाला आता है अपनी चीज को बेचने के लिए और इजाजत मांगता है, तो कहती हैं कि जुबैर की मौजूदगी में आना, मैंने इजाजत दे दी और जुबैर ने नहीं दी तो सौदा खरीदने में उनको अपने शोहर की इजाजत लेना फर्ज समझ में आता है। तो बहादुरी का ये मतलब नहीं होता कि हम शोहर के नाफरमान हो जाए, हम अपने वालिदैन के नाफरमान हो जाए। निहायत सब्र तहम्मुल से उन्होंने जिंदगी गुजारी। जब उनका निकाह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हुआ, जो कि अशरा मुबश्शरा में से हैं, तो कहती हैं कि बुखारी की हदीस में दर्ज है, कहती हैं कि वो ज़ुबैर के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घोड़ा था और एक ऊँट था। मैं उसको चारा डालती अपने से और पानी के डोल भर भर कर घर में पानी भरती, घर का काम करती, सारा काम वो घर का करती थी। बहुत गरीबी की हालत में थे उस वक्त ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु, और इतनी साबिरा खातून थी कि अपने बेटे को हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को खुद कहती हैं, जाओ जिहाद पे जाओ, हम चाहते हैं कि तुम शहीद होकर आओ और हम अपने हाथों से तुमको इत्र लगाएं। जब माँ इतनी हिम्मत वाली हो तो बेटा क्यों ना इतना बहादुर हो जाए। हम में से हमारी समाज की माएँ होती हैं, अपने बेटे को कहती हैं
मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, मेरे नजर के पास रहो, तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, तुम तो मेरे बुढ़ापे की लाठी हो, तुम तो मेरे जीने का सहारा हो, तुम मेरी नजर से दूर मत जाओ। जब माँ ऐसी होगी तो बेटा कैसा होगा? बुज़दिल। ये रोल है हमारा समाज में, बतौर माँ, बतौर बीवी, बतौर बेटी, कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम। उनका बेटा शहीद हो गया, उस वक्त उनकी उम्र 100 साल थी। अपने बेटे को कफनाती हैं, इत्र लगाती हैं, उसके बाद उनका इंतकाल होता है। 100 साल की उम्र में हिम्मत देखिए, हिम्मत। ये है बहादुरी की मिसालें। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, वो नहायत बहादुर थी। अपने भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को मुसला की हुई लाश उन्होंने अपनी आंख से देखी और उनको फिंगर टिप से पहचाना। उनकी लाश का मुसला कर दिया गया था। आपको मालूम है मुसला कहते हैं कि बॉडी ऑर्गन्स को काट दिया जाता है लाश के, तो हज़रत में ये काम किया गया था और अपने भाई की इस हाल में पड़ी लाश को उन्होंने हिम्मत से देखा। और ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब तमाम ख़वातीन को हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के किले में हिफाजत के लिए रख दिया गया था, उस वक्त एक यहूदी चक्कर काट रहा था किले के बाहर, उसको डंडे से मार के काम तमाम कर दिया उसका। एक औरत थी, बहादुरी की इंतहा देखिए। हज़रत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु अन्हा एक औरत थी, जंग ओहद में हिस्सा लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस में खड़ी रही, अपने शोहर को हिम्मत दिलाती रही, अपने बेटे को उनको तीर वगैरह प्रोवाइड करती रही और खुद भी लड़ती रही। अल्लाह के रसूल ने उनकी तारीफ की कि उम्मे हमारा तुम जो कर रही हो कौन कर सकता है। ये हमारा माजी है, ये हमारा पास्ट है। हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, एजुकेशन, तालीम से लेकर बहादुरी तक, सब्र से लेकर सदक़ात तक, हर तरह की मिसालें मौजूद हैं। सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स बेहतरीन तरह से ख़वातीन में मौजूद थे। उसके बाद भी हमको क्या ज़रूरत पड़ गई किसी और की तरफ देखने की? सबसे बुनियादी सवाल ये पैदा होता है। इसका एक जवाब है कि जो हम गैर कौम की तकलीद कर रहे हैं और जो भी हमारी ज़िंदगी में गफलतें हैं, उन सब की बुनियादी वजह सिर्फ एक है, और वो है कुरान मजीद से दूरी। हम कुरान मजीद नहीं पढ़ते, नहीं समझते, नहीं अमल करते। हमने कुरान मजीद को तर्क कर दिया है। आपको मानने में तकलीफ होगी कि हमने कहा कुरान मजीद को तर्क कर दिया है। हम तो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, कोई रोज़ करता होगा, कोई हर जुमा करता होगा, नहीं तो रमज़ान में तो ज़रूरी एक बार साल में निकल ही आती होगी। कब तर्क कर दिया है? कुरान मजीद को हमने अपने अमल से तर्क कर दिया, उसके सारे हुकूक हम नहीं अदा कर रहे हैं। हमने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए कुरान मजीद पर। हम पढ़ते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो अमल नहीं करते। ये हमारा हाल है। चूंकि हम कुरान मजीद से दूर हो गए हैं, इसलिए हमको हमारे फराइज याद ही नहीं रह गए। हमारे फराइज से मुंह मोड़ने की वजह से, अल्लाह से गफलत करने की वजह से अल्लाह ताला ने हमको हमारे खुद से भुला दिया। ये क्या कह रहे हैं हम? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह हश्र में, सूरह नंबर 59 आयत नंबर 19 में, उस शख्स की तरह ना हो जाना जिसने अल्लाह को भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने उसको अपने नफ्स से गाफिल कर दिया, अपने आप से गाफिल कर दिया। तो आज हम अपने आप से गाफिल हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं हम? अपने से गाफिल कहाँ है? जरा सा बीमार होते हैं फौरन डॉक्टर के वहाँ जानते हैं, भूख लगती है फौरन खाना खाते हैं, कोई तकलीफ हमको होती है हम फौरन उसका इलाज ढूंढते हैं। कहाँ गाफिल हुए? असल में हम अपने जिस्म से गाफिल नहीं हो गए, हम अपने असल वजूद, अपनी रूह से गाफिल हो गए।
ہم نے اس کے نرشمنٹ کے لیے سوچا ہی نہیں. جسم کے نرشمنٹ کے لیے ہم نے تمام انتظامات کر رکھے ہیں, لیکن یہ روح جو اللہ نے ہمارے اندر پھونکی ہے اس کا کوئی انتظام نہیں کرتے. یہ روح کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط کیا. وہ روح کی آواز تو رہتی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اس کو دباتے جاتے ہیں, اس کی آواز کو نہیں سنتے, نہیں سمجھتے. مسند احمد, ترمذی, ابن ماجہ کی روایات میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اسے مٹا دیا جاتا ہے, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا, گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے, تو ایک ایک اسپاٹ کرتے کرتے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے, پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. تو یہی کام ہم کرتے ہیں دھیرے دھیرے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل گناہوں سے پاک رہتا ہے, اگر بے عمل ہو جائے, قرآن سے دور, اللہ کی یاد سے دور, تو پہلے تو روح کی آواز آتی رہتی ہے, مت کرو, غلط کیا. اگر نہیں سنیں گے اندر کی آواز کو تو دھیرے دھیرے وہ قلب پورا سیاہ ہو جائے گا اور اندر کی آواز باہر آنا بند ہو جائے گی, لاک ہو جائے گا ہمارا ہارٹ, اور اس کے بعد اندر سے آواز آنا بھی بند ہو جائے گی. تو پھر صراط مستقیم دکھانے والا اندر والا تو نہیں رہے گا, روح تو نہیں رہے گی. ہمارا جو یہ جسم ہے, قلب ہے, وہ روح کا مقبرہ بن کے رہ جائے گا. تو ہم نے یہی کیا, ہم اندر کی آواز کو جھٹلاتے رہتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جج کرنے کے لیے اندر ایک روح چھوڑی ہے تاکہ ہم غلط سے باز آئیں. اس کے باہر بھی بہت سارے انتظامات کر دیے ہیں. قرآن مجید موجود ہے, رسول آئے تربیت کے لیے, تو ہم نے ان پر عمل نہیں کیا. اس وجہ سے ہم بالکل غافل ہو گئے, قرآن مجید کو ترک کر دیا. قرآن مجید میں ہی تو لکھا ہوا ہے کہ ہمارے روحانی وجود بھی ہے. قرآن مجید میں ہی تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے وجود سے غافل کر دیتا ہے, اپنی روح سے غافل کر دیتا ہے. تو یہ چونکہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, قرآن مجید کے اوپر ظلم کیا, اس وجہ سے اب ہمیں کچھ اور بھی نہیں لگتا غیر قوموں کی تقلید کرنا, کچھ عجیب بھی نہیں لگتا. ہم ویسٹرن کلچر, مغربی دنیا کی جو طرز عمل ہے اس کو بڑے شوق سے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن سوال یہ کہ ہمیں کہاں لے کر جائے گا. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں کر آئے ہیں, اور یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64 میں, وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصلی جینا ہے, وہی اصل زندگی ہے. اگر ان کو معلوم ہوتا, اگر یہ جانتے ہوتے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو سنوارنے کے لیے ہمارا پوری جد و جہد ہے, ہماری سعی ہے, ہماری بھاگ دوڑ ہے, ہماری انرجی خرچ ہو رہی ہے, ہمارا ٹائم خرچ ہو رہا ہے, یہ کچھ بھی نہیں. اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے صرف ایک چھوٹے سے گیم کی ہے. اگر اس کو ہار بھی جائیں تو کچھ ہار نہیں جاتے. اصل زندگی آخرت کی ہے. اس بات پر زبانی ایمان نہیں کہ ایمان بالآخرہ ہے ہمارے اندر, ہم کو یقین ہے قیامت ہوگی اور حساب ہوگا. زبان سے کہنے سے کام نہیں چلے گا, اس کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ زندگی آخرت کے مقابلے کتنی حقیر ہے. جب ہم اس بات پہ دل کے اندر گہرائی سے یقین کر لیں گے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے اعمال قابو میں آ جائیں گے اور ہم غلط کام چھوڑ دیں گے. اپنی زندگی کی کیا پریورٹیز ہیں وہ طے کر لیں گے, اور اگر ہم دنیا کمانا ہی چاہتے ہیں تو حدود شریعت میں رہ کر کمائیں گے. اللہ تعالیٰ دنیا کو سجانے کے لیے منع نہیں کرتا, دنیا مانگنے کے لیے منع نہیں کرتا. کتنی خاص دعا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بہتر دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے, اور ہمیں عذاب سے آگ کے بچا لے. تو دنیا میں رہنے کے لیے منع تھوڑی کیا جا رہا
ہے. اسلام تو طریقہ بتاتا ہے کہ کیسے رہنا ہے, لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے, اور ہماری ساری فکر, ہماری ساری دوڑ دھوپ, ہماری ساری جدوجہد دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے. تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ دنیا سے چند دن کے لیے ہے. جتنا بھی عیش و آرام اکٹھا کر لیں, نام کما لیں, ٹی وی پر آ جائیں اور ماڈل بن جائیں, ڈانسر بن جائیں, جو کچھ بھی کر لیں, یہاں پر جھوٹی عزت مل جائے, دنیا میں بھی سمجھ لیجئے اس کا نقصان جھیلنا پڑے گا, اور آخرت میں تو ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے. تو چوائس اب ہماری اپنی ہے کہ ہم ویسٹرن کلچر میں رنگ کے ان کے پیٹرن پہ کام کریں گے, ان کی طرح زندگی گزاریں گے, یا جن خواتین کا ہم نے مختصر میں ذکر کیا محدود وقت میں, ان کو اپنا اسوہ بنائیں گے اور اللہ کی نظر میں بہتر بنیں گے اور اپنی آخرت سنواریں گے. چوائس ہماری اپنی ہے. ہم آپ کو اسی چوائس پر چھوڑ کر آپ سے رخصت ہوتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, اور وہ مومن ہو, تو ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے اور اس کا ذرہ برابر حق ضائع نہ ہوگا, حق تلفی نہ ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سسٹر اسما شمس, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس عنوان پر روشنی ڈالی. مجھے امید ہے کہ ہم سب اس معاملے پر غور کریں گے اور اپنے زندگی کے طریقے کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. اب میں والنٹیئر سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو وہ کویسچنس پاس کر دیں, کیونکہ اب آگے ہم لوگ کویسچن آنسر راؤنڈ کرنا کریں گے. کسی کے پاس کویشچن ہے پیچھے میں, کسی کے پاس پیچھے نہیں ہے, کسی کے پاس پیپر سب آگے پیچھے نہیں, وہ آگے چلا ایک جائے. کویسچن ہے, آپ کے ہسبینڈ بہت کوآپریٹو ہے ماشاءاللہ, جو لڑکیاں ابھی دعویٰ کا کام شروع کریں وہ شادی کے بعد کنٹینیو کیسے رکھیں اگر اس کا ہسبینڈ اتنا کوآپریٹو نہ ہو؟ سوری میری ہندی تھوڑی ویک ہے. بہن کا بہت پریکٹیکل سوال ہے کہ ماشاء اللہ آپ کے ہسبینڈ کوآپریٹو ہیں الحمدللہ, اور جو بہنیں ابھی انمیرڈ ہیں وہ دعوت کا کام کر رہی ہیں اور آگے نکاح کے بعد بھی کرنا چاہتی ہیں اور کوآپریٹو نہ ہو شوہر, یا جو بہنیں موجود ہیں ان کا شوہر اتنا کوآپریٹو نہ ہو تو وہ دعوت کا کام کیسے کریں؟ بہن اس کا جواب جو خاص ہے وہ تو ہم نے لیکچر کے دوران ہی دے دیا تھا کہ شوہر پہ نہ ڈالیں. ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم خود طے کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم اپنے گول کو کنسنٹریٹ کریں کہ ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کام کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شوہر کو کوآپریٹو بنائے گا. یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ ساری آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ارادہ کرنا اور کوشش کرنا, اور اللہ کا کام کیا ہے؟ مدد کرنا اور نتیجے دینا. تو آپ پہلے ارادہ تو کریے, آپ نیک کام کرنے کا ارادہ کریے اور اپنے لیول پہ بیسٹ کوشش کریے. یہ دو کام آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور شوہر کوآپریٹو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. تھوڑا وقت لگے گا لیکن لازماً اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 47 میں, وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کی مدد ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی مدد ہم ضرور کریں گے, کر کے رہیں گے. ان کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر حق کر لیا ہے, ضروری کر لیا ہے, لازم کر لیا ہے. اب ہمیں ضرورت ہے مومنین بن کے دکھانے کی. آپ مومنہ بن کے تو دکھائیے, اللہ مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ مدد کرنے
کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 کہ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوگا. بس یہ جو خوف ہے اس کو ہی نکالنا سب سے اہم ہے کہ کیسے ہوگا. پورے سراؤنڈنگ نے کوآپریٹ نہیں کیا تو کیسے ہوگا. آپ تنہا کام شروع کیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنا دے گا. سب آپ کی مدد کے لیے پیش ہو جائیں گے. شوہر کو سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے, کچھ ہفتہ, کچھ مہینہ یا ہارڈلی کچھ سال لگے گا. کچھ سال, بس اس سے زیادہ نہیں لگے گا. دیکھیے آپ کو کچھ چیزوں کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ بہت سچے ہوں, آپ بہت ایماندار ہوں, بہت زیادہ باعمل ہوں, آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ ہر کوئی متاثر ہو جائے. جب آپ سچے ہوں گے, اخلاق کے اچھے ہوں گے اور پھر حق بات کریں گے تو شوہر کب تک آپ کو نظر انداز کرے گا. آپ اپنے اخلاق سے متاثر کر سکتے ہیں اور بہت جلدی وہ دن آ جائے گا کہ شوہر کوآپریٹ کرے گا. میرے شوہر کوآپریٹو تو ہمیشہ سے تھے الحمدللہ, لیکن ہم لوگ اس فیلڈ میں نہیں تھے. اللہ نے جب ہدایت دی اور ٹرن ہو گئے, پوری جو بھی ایبلٹیز ہے اس کو لے کے تھوڑی سی ٹرن ہو گئے اللہ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ نے سراؤنڈنگ سے بہت مدد دی, بہت لوگوں نے قبول کیا. ان لاس کو خوش رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں. آپ لوگ کی بڑی بہنیں بتاتی ہوں گی کہ کسی طرح ساس راضی نہیں رہتی, کسی طرح نند راضی نہیں رہتی, چاہے جو کر دو ایب ہی نکالتی ہیں. کتنا ٹف ہوتا ہے ان لاس کو خوش رکھنا. الحمدللہ جب ہم نے عمل سے تھوڑا دکھایا, بہت باعمل نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول کے اخلاق سے جو متاثر ہوئے, تو جب اخلاق دکھایا تو ہمارے لاز اتنے کوآپریٹو ہو گئے کہ اب ہم کو بہت سارے کام کے لیے بولتے ہیں تم جاؤ, تم اپنا کام کرو, تم پڑھو, تم لیکچر کے لیے جاؤ, تم پریشان مت ہو. ابھی میری سسٹر ان لا 2 مہینوں ہاسپٹلائز تھی اور ہم سے بولتی تھی کہ تم کو کھانا بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اپنا کام دیکھو. اور ہم لوگوں نے ابھی 5 days کانفرنس کی ہے دسمبر میں, وہ پورے ڈیوریشن میں میری سسٹر ان لا ہاسپٹل میں تھی اور پورا ٹائم ہم لوگ کانفرنس میں رہتے تھے اور کوئی شکایت نہیں, الحمدللہ کوئی شکایت نہیں ان کو, بلکہ خوش ہوتی ہیں, دعا دیتی ہیں. تو جب انسان اپنے اخلاق سے ثابت کرتا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں لوگوں سے جا کے کھڑے ہو کے لیکچر میں, وہ بات ہم اپنے اوپر بھی عمل کرتے ہیں. جب ہم گھر میں وہ اخلاق دکھائیں گے تو جب ان لاس راضی ہو جاتے ہیں تو شوہر کی کیا بات ہے, شوہر تو ویسے ہی انتہائی محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے. تو یہ بالکل فیئر آپ کا غلط ہے, یہ اللہ پہ ایمان کی کمزوری دکھاتا ہے. جس کے اندر بھی یہ فیئر ہوگی کیسے ہوگا, کوآپریشن کی ضرورت ہے. پہلے شروع کیجئے پھر مدد آئے گی. غور کیجئے انبیاء علیہ السلام پر, ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں کود گئے تب مدد آئی. موسیٰ علیہ السلام جب ایک طرف نیل ندی ہے اور دوسری طرف فرعون کا لشکر ہے, جب ایک دم قریب آ گیا تب اللہ کی مدد آئی. تو مدد آتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد. تو ہمیں اس دوران میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ پہ بالکل یقینی بھروسہ رکھنا ہے. انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا کام آسان کرے. جو بہنیں انمیرڈ ہیں ان کو بہت اچھا کوآپریٹو شوہر ملے, اور اگر نہ بھی ملے تو یقیناً کوآپریٹو ہو جائے گا. آپ کو باعمل رہنے کی ضرورت ہے. داعی کا سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے, صفت ہے, وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ باعمل ہو. آپ پریکٹسنگ مسلمہ ہوں گے پھر سارا کام اپنے آپ ہو جائے گا. اللہ کی مدد آپ کو ضرور آئے گی. السلام علیکم. ایک منٹ رکو, تمہارا اب کچھ کویشچنس آئے جو جن کا سبجیکٹ تھوڑا سا سملر ہے, وہ میں سب ساتھ میں پڑھ رہی ہوں. ایک کویشچن ہے, being an engineering student we are always surrounded by boys as our institution is co-ed. Even after studying we have to face this condition. Does Islam allow this? Even though we are able to practice parda and don't have any interaction with the boys.
दूसरा क्वेश्चन है, where is the line drawn or what are the limits in the context of interaction with the opposite sex in co-ed colleges according to Hadith and Quran? और हिजाब से रिलेटेड क्वेश्चन है, would you please enumerate or explain the parameters of hijab, as even when doing hijab girls are not doing it properly, and when the distinction between men's wear and women's wear is not clear anymore due to globalization. एक और सिमिलर क्वेश्चन है, जो मुसलमान औरतें मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, अगर वो गैर महरम मर्दों का इलाज करती हैं तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है या नहीं? एक और क्वेश्चन है, इज़ इट नेसेसरी टू कवर फेस एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ हिजाब? Can girls wear jeans, and is पर्दा of voice also applicable in Islam? बहुत सारे सवाल किए गए, मेरा दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है फिर भी कोशिश करते हैं कि उन सबको कवर किया जा सके। जवाब बहुत लंबा होने की उम्मीद है, लेकिन अपने लेवल पर छोटा रखने की कोशिश करेंगे। जो मेन फिक्र है इस तमाम सवालों में वो ये कि एक लड़की को कि क्या लिमिटेशन है उसकी इंटरेक्शन और हिजाब से रिलेटेड, कि हम बाहर जाएं, स्टडीज़ करें तो वहाँ पर कोई एजुकेशन है, जॉब करें तो वहाँ पर मर्द हैं और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इस हालत में हमें क्या करना चाहिए और साथ में हिजाब की क्या तकाज़े हैं उसके बारे में सवाल, फेस का हिजाब और अवैध का हिजाब। बहन, आप समाज में निकलकर पढ़ना चाहती हैं, अगर जो तालीम आपके लिए नेसेसरी है उसके लिए इस्लाम आपको रोकता नहीं है। आज समाज में अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, अगर फीमेल डॉक्टर्स नहीं होंगी तो कैसे इलाज होगा हम ख़वातीन का? हमको बहुत बार वो प्रॉब्लम्स आएंगी कि हम लेडी डॉक्टर चाहते हैं, तो अच्छी डॉक्टर्स की ज़रूरत है बेशक। तो अगर हमें मेडिकल की तालीम हासिल करना है जो कि एक नीड है, तो इस्लाम पूरी इजाज़त देता है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर को एजुकेशन के अलावा गर्ल्स कॉलेजेस मौजूद है तो हमको प्रेफर करना चाहिए गर्ल्स कॉलेजेस को ही। को एजुकेशन को इस्लाम एक्चुअली डिस्करेज करता है। को एजुकेशन में आप कितना बचेंगे, कोई ना कोई परेशानी आपको तकरीबन रोज रखी ही रहेगी। तो को एजुकेशन को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर उसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो और इल्म हासिल करना वो टॉपिक जैसे डॉक्टर बनना एक अहम काम है, तो अगर ऐसा है तो हमें उसको लेना चाहिए, लेकिन जितना कम से कम इंटरेक्शन पॉसिबल हो वो बनाकर, कम से कम, एज लेस एज पॉसिबल। तो हम क्या करना चाहिए, हमको अपनी लिमिटेशन खुद तय करनी चाहिए। और हिजाब के बारे में पूछा गया है, सारी लिमिटेशन हिजाब की ही नहीं है, लेकिन हिजाब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि को एजुकेशन में और जॉब में बीच में आता है, जिसको हमें समझना बारीकी से बहुत ज़रूरी है। हिजाब का एक्सटेंट पूछा गया है, यानी सत्र। तो औरत का सत्र है पूरा चेहरा और ये कलाई तक हाथ छोड़ के पूरा मुकम्मल जिस्म सत्र है। ये सत्र कवर रहना चाहिए, और सिर्फ सत्र ही कवर नहीं रहना चाहिए बल्कि हिजाब के 6 पॉइंट्स होते हैं। सत्र भी ढका हुआ होना चाहिए, और पॉइंट नंबर 2 कि वो टाइट फिटिंग का भी नहीं होना चाहिए कि फिगर पता चले, और पॉइंट नंबर 3 कि वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि आर पार नजर आए। पॉइंट नंबर 4 कि उतना ग्लैमरस नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करे। पॉइंट नंबर 5 कि वो ऑपोजिट सेक्स का नहीं होना चाहिए, यानी मर्द औरत के कपड़े ना पहने, औरत मर्द के कपड़े ना पहने। और पॉइंट नंबर 6 गैर मजहब के सिंबल नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो हदीस से निकाल कर बाहर लाई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हिजाब में आती हैं, इन सबको ख्याल रखना चाहिए हिजाब करते वक्त। तो ये सब हमको साइमल्टेनियसली फॉलो करना है। रिगार्डिंग
हिजाब ऑफ द फेस, उसके लिए उलमा में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बाज़ उलमा के नज़दीक चेहरे का हिजाब ज़रूरी है, होना चाहिए, बाज़ के नज़दीक मुस्ताहब है लेकिन फ़र्ज नहीं है। ऑप्शन इज दे, आप जिस भी आलिम से ज़्यादा इत्तेफाक रखें कि चेहरे का हिजाब ज़रूरी है, या उस आलिम से जो कहते हैं चेहरे का हिजाब ज़रूरी नहीं है। कुरान में तो चेहरा लफ्ज़ हिजाब के साथ मौजूद नहीं है। हिजाब के बारे में कहा गया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 में। 30 में मर्द का हिजाब, जो कि हमें गलत फहमी रहती है कि मर्दों को हिजाब क्यों नहीं, औरतों को हिजाब क्यों। तो पहले मर्द के हिजाब के बारे में कहा गया आयत नंबर 30 में कि मोमिन मर्दों से कह दीजिए वो अपनी निगाहों को नीचा रखें और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये मर्दों का हिजाब है कि उनको अपनी निगाह नीचे रखना चाहिए, टकटके बांध के लड़कियों को, खूबसूरत लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। ये उनका हिजाब है। अल्लाह ताला उनको भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाह को नीचे रखें। अगर औरत को गुजरना पड़ ही रहा है तो वो अपनी निगाह नीचे रखें, वो ना देखें। और औरत के हिजाब के बारे में कहा गया सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, अगली आयत में, कि मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपने सत्र को थामती रहें और अपनी ब्यूटी किसी को भी ना दिखाएं सिवाय वालिद के, बेटे के और महरम की भी एक लिस्ट है। तो ये हिजाब हम पर फर्ज किया गया, हमारे लिए ज़रूरी है ये पूरा हिजाब फॉलो करना। और रीज़न भी कुरान ने बयान किया। ऐसा नहीं है कि बस एक हुक्म लगा दिया गया और वो बेमकसद है, हमारे ऊपर एक बोझ की तरह डाल दिया गया, हम गर्मी में भी पहनना है और पसीने की हालत में भी पहनना है। नहीं, उसका रीज़न भी बयान कर दिया गया ताकि ये मुस्लिमात मुतमईन रहें। फरमाया सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में कि ऐ नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिना से कह दीजिए कि वो अपनी जिल्बाब ले लिया करें, यानी अपना हिजाब, अपनी ओढ़नी, अपनी चादर ले लिया करें ताकि वो शरीफ ज़ादी पहचानी पड़े और कोई इनकी इज्जत से ना खेले। तो हिजाब का जो रीज़न है वो ये है कि हम प्रोटेक्टेड रहें, हम गंदी नज़रों से बचे रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिस्टर अस्मा शम्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस उन्वान पर रोशनी डाली। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस मामले पर गौर करेंगे और अपने ज़िंदगी के तरीके को बदलने की कोशिश करेंगे और बेहतर होने की कोशिश करेंगे।